Good morning, students. First of all, we discuss some basic concepts. Now, here first definition is matter. What is matter? Matter is something which occupies space in universe. Air, water, wood, examples there can. These are examples of matter. Anything. Matter is of two kinds, solid and fluid. Now, there is difference between solid and fluid. Solid is a matter which neither flows nor is capable of flowing. Examples wood, iron, etc. Fluid is a matter which flows or is capable of flowing. इसके examples water, air. Air वैस हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं water और air, these are examples of fluid. Means solid को छोड़ के जो भी कुछ है आपका वो सब fluid है आपका. Gases भी fluid ही है. Air. सॉलिड इज अ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप और साइज. कोई भी सॉलिड बॉडी है तो उसका डेफिनेट शेप और साइज है, लेकिन जो फ्लूइड है उसकी कोई भी डेफिनेट शेप कोई भी साइज नहीं होती. जिस भी उसको वो वेसल में डालते हो तो उसी शेप वही शेप वो उस वेसल की ही शेप वो ले लेती है. शेप जो है सॉलिड की डू नॉट चेंज व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ. शेप कैन चेंज व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड टू इट. सम बॉडीज आर देयर जिनकी शेप हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सम सॉलिड बॉडीज आर whose shape cannot be changed on applying force also. Fluid, this is a type of matter which requires some force or support to retain its size and shape. Solid के examples, two kinds of solid, elastic and plastic, और fluid में liquids and gases. फिर elastic और plastic solids के बीच में difference. Elastic solid की वो kind है which have definite shape and size, but these types of solids changes their shape when some external forces are applied on it and recover their original form when these forces are removed. Rubber is an example of elastic solid. Plastic solids have definite shape and size which is changed when some external forces are applied on these, and these do not recover their original form after when these forces are removed from that. अगर हम उन एक्सटर्नल फोर्सेस को हटा दें तो एक बार जो उनकी शेप चेंज हो गई वो अपनी शेप ओरिजिनल शेप में दोबारा से नहीं आ सकते. फिर हम डिफरेंस कर रहे हैं लिक्विड और गैस. आपको पता ही है लिक्विड और गैस में डिफरेंस. लिक्विड्स, these are kinds of fluids which have a definite volume but no definite shape. They require external support to maintain their shape. Liquid is type of fluid which is more or less incompressible. और एग्जाम्पल्स लिक्विड्स के अल्कोहल, वाटर एटसेट्रा. गैसेस जो है विच इज कंप्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं. दे कैन नाइदर मेंटेन देयर शेप और वॉल्यूम, कोई इनका शेप और वॉल्यूम नहीं है. वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैस आर सेम एज दोज ऑफ द वेसल इन विच इट इज कंटेन्ड. एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दीज आर सम गैसेस. हाइड्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, this is the branch of mathematics which deal with conditions of equilibrium of masses of fluids and solids in contact with them. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस, थर्स्ट एंड shearing स्ट्रेस. स्ट्रेस देखो क्या है. स्ट्रेस इज नथिंग बट वी कैन से फोर्स पर यूनिट एरिया. स्ट्रेस. Suppose R is a region bounded by a matter. It may be fluid or solid. Let P be any point of region inside it. Place a plane area of unit area, say alpha, containing P within the matter. This plane area separates the region at P into two parts, each of which exert on one another equal and opposite forces of magnitude T by Newton's third law of motion. Newton's third law of motion क्या कहता है? For every action, there is equal and opposite reaction. And this force T in general may not be perpendicular to the plane area. जो ये हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ये फोर्स जो है इन जनरल परपेंडिकुलर नहीं है एरिया के, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है. इसके अब हमने n जो ये T है कोई भी डायरेक्शन है तो इसके हमने कंपोनेंट्स ले लिए, मीन्स डिकम्पोज कर दिया. तो जो n जो हमने कंपोनेंट्स है T का, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया, एंड S दिस इज along the plane, means n perpendicular to the area, तो ये s किस डायरेक्शन में लिया, along the plane ले लिया.
along the surface of the plane area, और n जो है वो along normal to the plane area. Here T is called the stress per unit area. Stress is a force per unit area across the plane area alpha. N क्या है? कंपोनेंट है स्ट्रेस का परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया, एंड दिस इज कॉल्ड थर्स्ट. थर्स्ट क्या है? कंपोनेंट है स्ट्रेस का परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एन क्या है? कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू प्लेन एरिया, एंड दिस इज कॉल्ड थर्स्ट पर यूनिट एरिया. एस, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ टी विच इज अलोंग द प्लेन, एंड दिस इज कॉल्ड द शियरिंग स्ट्रेस पर यूनिट एरिया. ठीक है, टी आपका स्ट्रेस, एन कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज द थर्स्ट. और एस जो कंपोनेंट है अलोंग द प्लेन, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेस. इन केस ऑफ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम द शियरिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज जीरो. अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है तो शियरिंग स्ट्रेस हमेशा क्या होगा? जीरो. देयरफॉर स्ट्रेस ऑन एरिया इनसाइड द फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम इज परपेंडिकुलर टू द एरिया. अगर शियरिंग स्ट्रेस एस जीरो ही हो गया तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचा, वो क्या बचा आपका? एन. एन मींस परपेंडिकुलर टू द एरिया. इन केस ऑफ मैटर बीइंग सॉलिड द शियरिंग स्ट्रेस इज नॉट जीरो. सॉलिड के केस में शियरिंग स्ट्रेस आपका जीरो नहीं होगा. देयरफॉर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन एरिया इनसाइड द सॉलिड इज नॉट एट राइट एंगल टू द प्लेन एरिया. जब शियरिंग स्ट्रेस मींस एस कंपोनेंट भी है तो सिर्फ एन ही तो काम नहीं करेगा, एन और एस दोनों ही मिलकर काम करेंगे. तो इसका मतलब स्ट्रेस जो है उस केस में प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर नहीं होगा. इतना ही देखना है इनमें हमने. नेक्स्ट डेफिनेशन है मास ऑफ अ बॉडी. मास क्या है? मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी. अब आपको पता होगा मास और वेट में भी डिफरेंस है. मास, वेट क्या है? वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, एंड वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी, m into g, acceleration due to gravity. Density of a substance is defined as a mass per unit volume of the substance. Density पता है आपको? Mass per unit volume, and it is denoted by rho. फिर जो सिस्टम्स आप पढ़ते हैं जिसमें हमने यूनिट मेजर करते हैं, वो आप तीन सिस्टम पढ़ते हो. MKS system, which is also called SI system, CGS system, and FPS system. MKS system, which is also called SI system, M means length is measured in meter, K means mass is measured in kilogram, and time is measured in second. In all units, in all systems, units of time is same, which is second. In CGS system, length is measured in centimeter, mass is measured in grams, and time is measured in seconds. CGS, C for centimeter, G for grams, and S for second, time का unit. और FPS, length is measured in feet, F, P, mass is measured in pounds, and time is measured in seconds, S. तो जो रो है आपकी, रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. इन सीजीएस सिस्टम डेंसिटी इज मेजर्ड एज नंबर ऑफ ग्राम्स इन क्यूबिक सेंटीमीटर, मींस ग्राम्स पर सेंटीमीटर. ये जो आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मास जो यूनिट्स तो हो गए ग्राम्स, वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस क्या आएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. A given quantity of water occupies the least volume at temperature 4 degrees Celsius. 4 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे जो गिवन क्वांटिटी है वाटर की, वो लीस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. एंड इन सीजीएस सिस्टम द मास ऑफ 1 cubic centimeter of water is found to be weighed 1 gram. Therefore, density of pure water at 4 degrees Celsius is taken as 1. प्योर डिग्री वाटर की, प्योर वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में हम क्या कंसिडर करते हैं? 1. इन एफपीएस सिस्टम mass of 1 cubic foot of pure water at 4 degrees Celsius is found to be 62.5 pounds. Thus, density of water is 62.5 in foot pound in FPS system. ये रिजल्ट जो है सीजीएस सिस्टम में 4 डिग्री सेल्सियस पे जो प्योर वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम यूज करते हैं. ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंस. Homogeneous का meaning, if equal volume taken from any part of it, however small part may be have equal masses. Homogeneous, आप जैसे पढ़ते भी हो, ये homogeneous equation है, ये heterogeneous है. Homogeneous means same.
तो substance is said to be homogeneous if equal volume taken from any part of it, however small parts may be, have equal masses. If delta m is mass of an element of a substance and delta v is volume, then mean density is delta m by delta v. And on taking limit delta v tending to 0, the limit of this ratio as delta v tending to 0 is in fact the density of the substance. And if this limit is same at every point of the substance, then substance is called homogeneous. And homogeneous substance is of uniform density, and the substance which are not homogeneous are called heterogeneous. ठीक है, मीन्स जो होमोजीनियस आपके सब्सटेंस हैं उसमें आपकी जो डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा. नेक्स्ट वेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. अभी मैंने बताया वेट और मास में डिफरेंस. वेट क्या है आपका? वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. फोर्स आप बोलते हो मास इनटू एक्सेलरेशन. ऐसे वेट जो है दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. W इज इक्वल टू m इनटू g. W मींस वेट, m मींस मास. Let m be the mass of a substance in grams weighing W dynes. अच्छा, अभी जैसे हमने CGS, FPS और MKS सिस्टम में बात की यूनिट्स की, तो ऐसे ही फोर्स के यूनिट्स अगर हम बात करें SI सिस्टम में, MKS सिस्टम में क्या होंगे? न्यूटन्स. CGS सिस्टम में आपको पता है क्या होंगे यूनिट्स? कौन डाइन्स में पढ़ा है आपने? CGS सिस्टम में यूनिट्स जो है वो क्या होंगे? डाइन्स, फोर्स के यूनिट्स. तो W जो है दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो इसके यूनिट्स भी क्या होंगे? डाइन्स. तो लेट m बी द मास इन ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस weighing W dynes and having V cubic centimeter as the volume. Obviously, W is equal to m into g, means weight is equal to m into g, mass into acceleration due to gravity. G CGS सिस्टम में बात करें तो G के यूनिट्स हो गए सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंड M मास ऑफ अ V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ सब्सटेंस. तो क्या हो गया? V इंटू मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है? रो क्या था आपका? मास पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में मास, और एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना मास है. तो m क्या है आपका? v इंटू रो. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, तो w आपका क्या बन गया? v रो g. ठीक है, ये आपको लर्न रखना है फॉर्मूला. नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये टॉपिक.